Now let us get into the last part of the chapter, that is revenue. कोई भी फार्मर, जस्ट इमेजिन, कोई सामान बनाएगा से उसने 30 क्विंटल्स राइस प्रोड्यूस करे। क्या वो उसको रख लेगा अपने बाजू में, ऐसे पास में रखेगा बना करके? नो, ही विल हैव टू सेल इट, राइट? तभी उसने इतना कॉस्ट इंकर किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको बेचने वाला हूँ। अब उसको बेचेगा, क्या वो फ्री में बेचेगा? ऑब्वियसली नो, ही विल बी चार्जिंग फॉर इट। तो उसको जो उसका पैसा मिलेगा, जो उसको इनकम होगी, उसे कहा जाएगा रेवेन्यू। Revenue is another very important concept in economics. In fact, study of cost is not complete if we do not talk about revenue. What is revenue? Revenue is defined as the amount of a person receives by selling a certain quantity of commodity. कोई भी अमाउंट जो पर्सन को रिसीव होता है आफ्टर सेलिंग कॉमोडिटी, वो हो जाएगा रेवेन्यू. You know that a commodity can be purchased in the market by paying a certain price. So revenue can be calculated by multiplying price and quantity of the commodity. Hence, we can write revenue कैसे निकालेंगे? कोई भी एक सामान का प्राइस लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर लिए. सपोज यू गो टू द शॉप एंड बाई 5 बुक्स. एक बुक का प्राइस है ₹50. तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल डू सिंपल 50 मल्टीप्लाई बाई 5. क्या किया तुमने? क्वांटिटी को एक बुक के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया. सो रेवेन्यू इज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी. ड्यूरिंग a given period of time, the seller sells certain quantity of the commodity. So, the total amount of money received by the seller during the time period is called total revenue. और उसको जितना इकट्ठा करके रेवेन्यू मिलता है, उसे कहा जाएगा टोटल रेवेन्यू. We denote it as TR, where TR stands for total revenue. उसका हमने एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म क्या बोला है? TR बनाया है. Let us denote price as P and quantity as Q. सबका शॉर्ट फॉर्म बनाया है. So we can write TR is equals to P into Q. और उसका फुल फॉर्म क्या है? Total revenue is equals to price into quantity. Now, example, continue with the example of the farmer in the our section on cost. हमने देखा था farmer का example. Think that farmer produced 30 quintals of rice. उसने 30 quintals of rice बनाए, ठीक है? Let us say price of rice is 1600 per quintal और एक क्विंटल है 1600 रुपीज़ का. सो कितने में बेचेगा वो? 1600 मल्टीप्लाई बाई 30, आंसर कम्स टू 48,000. तो उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 48,000. हम अगर देखें तो उसका प्रॉफिट हुआ ना, उसने कुछ 42,000 जितना स्पेंड किया था, राइट? 42,000 जितना उसने स्पेंड किया था, और अब वो कितने में बेच रहा है? 48,000, राइट? सो उसका प्रॉफिट हो गया. From this example, we can also say revenue is the money received of the producer or seller from the sale of his output. Another term used for total revenue is total sale. हम sale proceeds भी बोल सकते हैं, या revenue एक ही बात है. Because revenue is received by selling a commodity. Revenue कब मिलता है हमें? जब हम कोई सामान को बेचते हैं. So हम बोल सकते हैं total sale का proceed है, सेल करने की वजह से हमें जो मिला है वो अमाउंट है, या हम बोल सकते हैं revenue. It is also called total sale proceeds from that commodity. You must remember that each and every commodity has its own price. A retailer sells different commodities to the buyers. Take example of a provision store or a stationery shop. A seller sells various items in provision store, such as rice, wheat flour, different varieties of dal, biscuits, edible oil, etc. हम भी जाते हैं जब शॉपिंग करने, राइट? जो हम बोलते हैं, जैसे हम राशन खरीदने जाते हैं तो हम अलग अलग सामान बेचता है प्रोड्यूसर, ठीक है? वहाँ शॉप पर अलग अलग सामान होते हैं, हम उनको खरीदने जाते हैं. So you will be even find variety of rice such as basmati, परमल, सेला. अलग टाइप के राइस में भी बहुत सारी varieties होती है. There are different types of edible oil such as refined vegetable oil, sunflower oil, mustard oil, soybean oil, and so on. A retail shopkeeper sells so many different kinds of goods and services as well as different kinds of same good. एक गुड में काफ़ी वैरायटी होती है, राइट? और गुड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. सो व्हाट विल बी टोटल रेवेन्यू से आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक? एक हफ्ते में वो कितना अर्न करता है? द आंसर इज वेरी सिंपल. फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स ही सोल्ड ड्यूरिंग द वीक. हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने सामान उसने बेचे हैं वीक में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके प्राइसेस से. सो मेक अ लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड थर्ड फाइंड द टोटल रेवेन्यू. और वो कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके. नीचे अगर हम एग्जाम्पल देखें, कंसिडर द शॉपकीपर हैज सोल्ड 100 kg ऑफ बासमती राइस. उसने 100 kg बासमती राइस बेचे एक शॉपकीपर ने. 70 लीटर्स सनफ्लावर ऑयल बेचा है, 100 पैकेट बिस्किट बेचे हैं, 150 kg ऑफ व्हीट फ्लोर बेचा है, और गिवन प्राइस कितना है? 35 बासमती राइस है, 90 सनफ्लावर ऑयल का प्राइस है, 10 बिस्किट का है, और 22
व्हीट फ्लोर का है। तो जो जो प्राइस है उनके साथ उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो बासमती राइस 100 kg मल्टीप्लाई बाई 35, राइट, देन 70 लीटर्स मल्टीप्लाई बाई 90, 100 इंटू 10 एंड 150 इंटू 22। तो यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखाया है इन्होंने। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई 14,100। तो हमने निकाल लिया रेवेन्यू। क्या कैसे निकाला, जो उनका प्राइस है मल्टीप्लाई बाई नंबर कितने कितने क्वांटिटी में वो बेचा जा रहा है, उससे हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। नाउ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज डिनोटेड एज AR। इसका भी शॉर्ट फॉर्म AR है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू, हमने एवरेज प्रोडक्ट देख रखा है, एवरेज कॉस्ट देख रखा है, अब हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भी वैसा ही होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। सिम्बॉलिकली AR is equals to TR upon Q. Take the case of a single commodity. We know that TR is equals to P into Q. TR मतलब टोटल रेवेन्यू क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो AR क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। सो इसलिए कैसे हुआ, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम हो जाएंगे, ये तुम्हें समझेगा अभी अगर नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगी। सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल हैव टेकन। प्राइस है एक सामान का 10 रुपये, एक का सामान का प्राइस है 10 रुपये। से शर्ट ले लो, एक शर्ट का प्राइस है 10 रुपीज़। हमने उसको बेचा 1000 शर्ट्स बेचे, ठीक है। कोई कंज्यूमर आए, उनको हमने 1000 शर्ट्स बेचे। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया होगा, उससे 10,000 का आया होगा, राइट। अब अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूँ तो कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू 10,000 का डिवाइडेड बाई यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई यूनिट्स। तो आंसर विल कम टू 10। तो प्राइस कितना था हमारा 10। तो ये दोनों अल्टीमेटली सेम नहीं हो गया, प्राइस जितना था उतना ही रेवेन्यू। और ये सिंपल है, मैथ्स की वजह से ऐसा हो रहा है। जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली आंसर यही आने वाला है, ठीक है। अगर मैं 20 वाले का एग्जाम्पल लूँ, 20 एक शर्ट का प्राइस था, 2000 बेचे, तो टोटल कितना रेवेन्यू आया, 220 इंटू 2000 दैट इज 20,000, राइट। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 2000। सो एक का आ गया 20, हमें एक का ही निकालना था, राइट। एवरेज रेवेन्यू को हम बोल सकते हैं कि एक का जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है। सिंपल। आई होप यू गॉट इट. In case you didn't, you can still ask me. I'll make separate video for it if you want, if majority of people will say. But I think this was very simple. Now, marginal revenue, same as marginal cost. Marginal revenue is defined as increase in total revenue due to 1 unit increase in the sale of quantity of output. Refer to the above example, let the vendor increase the sale to 21 kg. In that case, the total revenue or TR becomes 50 into 21, that is 1050. Earlier, when the sale of output was 20 kg, TR was 1000. So MR क्या हुआ, increase 1050 minus 1000. We'll see in the example. देखो पहले सेल हो रहा था 20 kg, तो प्राइस कितना था, एक का 50, तो 20 into 50 comes out 1000. टोटल रेवेन्यू कितना है 1000. नाउ 21 kg सेल हो रहा है, 50 ही प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो 21 into 50 comes out to 1050. What will be the marginal revenue? फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, 1050 माइनस 1000 कम्स आउट टू 50. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 50. इट शुड बी नोटेड सेम एज इन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, जो लिखा था वही लिखा है. एवरेज रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी गिवन लेवल ऑफ सेल of output, while marginal revenue is calculated for 2 successive level of sale of output. Okay, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इन लोग ने कैलकुलेट नहीं किया है. You have the task, you will be calculating average revenue. यहाँ पे एक कॉलम बना लेना, ठीक है, या अलग से नोटबुक में यू कैन डू, ठीक है. एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताना कि फर्स्ट वाले का क्या आएगा, सेकंड वाले का क्या आएगा, एंड आई विल बी गिविंग आंसर्स इन द कमेंट. फर्स्ट यू रिप्लाई एंड आई विल सी कि वो राइट निकालते हो या नहीं, ठीक है. तो एवरेज रेवेन्यू हर एक लेवल का आता है, मतलब 2 आंसर आएंगे तुम्हारे, एक इसके लिए आएगा और एक इसके लिए आएगा. तो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आता है, राइट. और मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ सक्सेसिव, एक इंक्रीज होने की वजह से ही जो एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा. वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, in the example we can see that if seller is able to sell successive quantity of output at a given or same price, then AR and MR are equal. This further implies that price of commodity in the market will change for different commodities, then AR and MR will be different from each other. यहाँ पे प्राइजेस सेम है,
पर अगर प्राइसेस अलग होते तो AR/MR भी अलग अलग आते। मतलब जैसे कि हमने देखा ये प्राइस यहाँ पे 50 है, ठीक है, उतना ही MR आया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दोनों ऊपर नीचे प्राइस 50-50 लिए हमने। यही अगर हम अलग प्राइस लेते तो AR और MR सेम नहीं आता। Now one important, okay, done. Example is given. Two example. Okay, three examples are there. Let's see. Price of 1 kg of guava is 50. Vendor sold 20 kg in 2 days. What is his average revenue? Average revenue बोला है, डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है एवरेज रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। So total revenue will be 20 multiplied by 50. It comes out to 1000. अब हम निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू। 1000 डिवाइडेड बाई 20, so आंसर विल बी 50। सी 50-50 सेम आया ना दोनों प्राइस और एवरेज रेवेन्यू। नाउ टू कंटिन्यू above example, vendor could sell 21 kg of guava at the same price. Then what is the marginal revenue? ठीक है, इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। नाउ यूनिट है 20 शर्ट्स है, तब प्राइस था 50, टोटल रेवेन्यू कम्स आउट टू 1000। नाउ यूनिट है 21 शर्ट्स, प्राइस है 50, आंसर कम्स टू 1050। कितना इंक्रीज हुआ? 1050 माइनस 1000 कम्स आउट टू 50, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 50। Last, a shopkeeper sells 10 kg of rice at 30 and 11 kg of rice at 29. What is the marginal revenue? Again tabular form करके we can calculate. How? 10 kg राइस से तब 30 रुपीज़ था, 29 रुपीज़ में 11 kg राइस से तब 29 रुपीज़ था। तो अगर मैं टोटल निकालती हूँ तो इट कम्स आउट टू 300, राइट, एंड दिस कम्स आउट टू 319। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 319 माइनस 300 कम्स आउट टू 19. So marginal revenue will be 19. लास्ट टॉपिक, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि कैसे फार्मर को प्रॉफिट हुआ। Both revenue and cost are important concept in economics. While cost is the expenditure incurred to produce a good or service during the production process, revenue is the money received by the producer by selling that good or service. तो कोई भी जो खर्चा लग रहा है उसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट, और कोई भी जो सेलिंग करके उसको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट रादर आई वुड से इनकम आएगी, वो हो जाएगा रेवेन्यू। So cost symbolizes sacrifice made by the producer and revenue symbolizes gain for the producer. वो कुछ sacrifice करता है तो बदले में उसको gain होता है। Like you are sacrificing your time by studying, you will get very good marks, that will be your gain. By getting the required revenue from sale of the commodity, the producer is able to recover the cost he has incurred earlier. और उसको जो प्रॉफिट पैसे आएंगे उसको वो कॉस्ट से पूरा वो इंकर हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। In that case, we say that producer earned his due to share, which is called profit. He can define the profit. Profit कैसे हम define कर सकते हैं? Surplus of revenue over the cost. अगर रेवेन्यू ज़्यादा होती है कॉस्ट से तो वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था फार्मर वाले में? इट वॉज 42,000, ठीक है। और हमारा रेवेन्यू कितना आया उसको बेचने से? हमने देखा था 48,000 था शायद, 42,000 तो वो था, राइट, 48,000, राइट। सो 48,000 minus 42,000, आंसर comes out to 6,000। तो फार्मर को कितना प्रॉफिट हो गया? 6,000। So this was all because of his efforts that he has gained. So this was it for the chapter. I hope you understood the chapter, right? And if you did, let me know in the comments or by liking the video, right? Keep studying and happy learning.